Hello everyone. So let's continue with our CAT 2018 LRDI puzzle based on quant. So question number 1 and 2 has been discussed in the previous two video. Let's look at the question number 3. Question number 3 is very tricky one. Let's have a look at it. Let's discuss the set. What is the maximum number of customers that the ATM can serve with a stock of 5,500 rupee notes and a sufficient number of notes of other denomination if all the customers are to be served with at most 20 notes per withdrawal? So the question has a new condition now. The total number of notes all the customer are to be served with at most 20 notes per withdrawal. The first condition. So we have three denomination, guys, as per the instruction: rupees 100, rupees 200 and rupees 500. So if I take X notes of rupees 100, Y notes of rupees 200, Z notes of rupees 500, I'll have this value as 100X plus 200Y plus 500Z, and this value should be equal to 5,000. And the condition that we are supposed to satisfy over here is that we have a stock of 5,500 rupee notes. And look at the question carefully. There is no condition of any preference, right? It's not that we are supposed to there are customers who are selecting 500 rupee note as a preference or 200 rupee note as a preference as per the given instruction. There's a condition that if you're selecting a note for your preference, the number of notes for that particular preferred note should be more than the other two notes, right? But here in this question there is no such condition, right? As we were discussing the previous two questions, we had this condition of preferred note, but here the condition here is there are 20 notes per withdrawal. At most 20 notes per withdrawal means the total value of X plus Y plus Z should be less than equal to 20. It cannot go more than 20. 100 रुपी 200 रुपी और 500 के जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं वो मैक्सिमम वैल्यू उनका जो टोटल हो सकता है वो 20 हो सकता है या 20 से कम हो सकता है, राइट? 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. ओके, 5,500 rupee notes, right? What is the maximum number of customers that the ATM can serve with a stock of 5,500 rupee notes and a sufficient number of notes of other denomination? Okay, so guys, with a fixed 500 rupee note as 50, right? 500 rupees wale jo number of notes and that is 50. And if I want to serve the maximum number of customer with this condition being given over here, I need to minimize the value of Z as low as possible. Right now, if I have to minimize the value of Z as low as possible, you should start from the minimum possible value of Z, and you should also need to look at this condition that the total number of nodes should be less than equal to 20. Z को ही minimize क्यों करना है? Why we are trying to minimize the Z, right? Because अगर Z minimize होगा तभी ये 50 नोट ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स में बटेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल 50 के अगर मैं वन नोट सबको दूंगा तो 50 कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट होगा. इफ यू आर गिविंग 2 नोट्स टू वन कस्टमर, राइट, दो नोट अब आप सबको दोगे तो 25 कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट होगा. 5 दोगे तो 10 में होगा. सो अगर मुझे नंबर ऑफ कस्टमर्स को मैक्सिमाइज करना है देन आई नीड टू टेक केयर कि 50 जो फिक्स नोट्स हैं 500 रुपीज वाले वो पर कस्टमर में एज जितने कम हो सके उतने कम आपको देने हैं. But with this condition being satisfied that X plus Y plus Z should be less than equal to 20. So let's find out what is the minimum possible value of Z. Z का minimum possible value तो 0 हो सकता है, right? If I can take value of Z as 0, then you see that 5,000 रुपए को पूरा करने के लिए मुझे Y का value 25 लेना पड़ेगा. Now you see that if I take the value of Y as 25, तो मेरा ये condition satisfy होगा? नहीं होगा. So will this case work? No, this case will not work. Okay. If I take Z as 1, 500 के वन नोट को मैंने लिया, राइट? तो 500 का वन नोट तो बाकी बचे 4,500 रुपीज. 4,500 रुपीज में अगर मैं ज्यादा से ज्यादा 200 वाले नोट यूज करूंगा तो मिनिमम 22 नोट्स तो लगेंगे और एक नोट X का भी लगेगा, 100 का भी लगेगा. क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? X plus Y plus Z is less than equal to 20? No. So this is also eliminated. 500 के 2 नोट्स लिए 1,000 रुपीज हो गए, तो
y का वैल्यू अगर मैक्सिमाइज भी करना है तो 20 नोट्स तो लेना पड़ेगा, 1000 यहाँ से आया, बाकी बचा 4000, 4000 विल बी फ्रॉम हियर, राइट। क्या इस केस में कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट, और z का x का वैल्यू 0, you see that still x plus y plus z is 22 which is not less than 20, so this is also eliminated. If I take z as 3, मतलब 500 के 3 notes, so 1500 rupees हो गया, and you are left with 3500 more rupees. 3500 rupees more. If I take the value of y as, if I take the value of y as maximum as possible, that means अगर मैं मैक्सिमम भी वैल्यू लूंगा तो 17 ले सकता हूँ, 17 इंटू 2 3400, अभी भी 100 बचा, तो 100 रुपी का एक नोट लेना पड़ेगा। क्या इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होना है, x प्लस वाई प्लस जेड, 1 प्लस 17 18, 18 प्लस 3 21, this is supposed to be less than equal to 20, it's not getting satisfied. Okay, what if I take the value of z as 4, guys? If I take the value of z as 4, तो 2000 रुपीज आपको 500 नोट से मिल जाएगा। द रिमेनिंग वैल्यू विल बी नाउ 3000। 3000 मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y कैन बी 15, राइट। 3200 रुपीज में 15 नोट्स, ओके, एंड देन आई कैन टेक x as 0। क्या इस केस में इज इट पॉसिबल टू सेटिस्फाई द कंडीशन? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? You see that x plus y plus z in this case is 19, which is less than equal to 20. So yes, this case will work. अब 4 से z का वैल्यू 4 से नीचे लेना पॉसिबल नहीं है अगर मुझे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, और 4 से ज्यादा इसलिए नहीं लेना बिकॉज फिर कस्टमर मैक्सिमम नहीं होंगे। दैट मीन्स इफ विद फिक्स 50 नोट्स ऑफ 500 रुपी नोट्स, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z इज 4, राइट। अगर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 4 है और 50 नोट्स को 4 करके अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सी दैट क्वोशंट वैल्यू जो आएगा वो 12 आएगा, रिमाइंडर विल बी 2, तो 12 कस्टमर्स ही सर्व होंगे, सो आंसर विल बी 4 ऑप्शन। इट्स लाइक 50 नोट्स 50 रुपीज है और 4 रुपीज आपको देने हैं, तो 4 रुपीज पर पर्सन जाएगा तो 12 कस्टमर में बटेगा, राइट। सो 50 नोट्स को 4 नोट्स पर कस्टमर देना है, सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 12 कस्टमर्स। 2 नोट और बच जाएंगे बट वो मेरे किसी काम के नहीं है, राइट, उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकता। सो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है जिसमें x plus y plus z should be less than equal to 20. In that case, the minimum possible value, the maximum number of customer can be 12 only. So option 4 will be the answer of the question, guys. Let's quickly have a look at the question number 4 also, guys. Let's cover this up, right? Let's wind up this set. What is the number of 500 rupee notes required to serve 50 customer with 500 rupee note as a preference, and another 50 customer with 100 rupee note as a preference, if the total number of notes to be dispensed is the smallest possible? So see this, guys, in this set, in this, what we are supposed to do is, what is the number of 500 rupee note required to serve 50 customer? So 50 customers ऐसे हैं, right, जिन्होंने 500 रुपी की नोट का प्रेफरेंस सेलेक्ट किया, राइट। 50 कस्टमर ऐसे हैं who are preferring 500 rupee note as their preference, 500 rupee note as their preference, okay. And then there are another 50 customers, जिनका 100 रुपी का प्रेफरेंस सेलेक्ट, जिन्होंने 100 रुपी के नोट का प्रेफरेंस सेलेक्ट किया। तो ये दोनों, ये 50 कस्टमर और ये 50 कस्टमर, मतलब 100 कस्टमर को अगर आपको सर्व करना है तो आपको कितने 500 रुपी नोट का रिक्वायरमेंट होगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स रिक्वायर्ड टू सर्व 50 कस्टमर विद दिस, with selecting preference of 500 and 50 customers selecting preference of 100 rupee notes. Okay, what is the number of 500 rupee notes that will be required? You see this, guys, ये 50 कस्टमर को अगर मुझे सर्व करना है, right, and you also need to see what is the total number of, if the total number of notes to be dispensed is the smallest possible, guys. Now this is a very important information. जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स होने चाहिए वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल होने चाहिए। दैट मीन्स x इज, इफ आई टेक x 100 नोट्स का x रुपीज अगर लो, और 200 रुपी का y नोट्स, और 500 रुपीज का z नोट, सो सी दैट आई नीड टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z, दिस शुड बी मिनिमम पॉसिबल, गाइज। अगर मुझे इसको मिनिमम पॉसिबल करना है तो मुझे z का वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल लेना पड़ेगा। Why should I take z as maximum possible? Because z में z जो है वो 500 रुपी के नोट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
Z जितना ज्यादा होगा टोटल वैल्यू उतना ही मिनिमम आएगा, क्योंकि अगर आप 5000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हो और आपको कम से कम नोट्स में विड्रॉ करना है तो 500 रुपी की नोट के प्रेफरेंस सबसे ज्यादा, 500 के नोट सबसे ज्यादा होने चाहिए। सो Z का वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल करना है गाइस आपको। सो ये 50 कस्टमर जिसमें 500 रुपए का प्रेफरेंस सेलेक्ट किया, ये 50 कस्टमर में मेरे को कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा दैट Z शुड बी ग्रेटर देन x प्लस वाई। Z की वैल्यू x प्लस वाई से ज्यादा होनी चाहिए। Z की वैल्यू को x प्लस वाई से ज्यादा करना है तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z इज 0, तो ये 0 ले लो, ये 0 ले लो। क्या ये काम करेगा? यस करेगा। क्या इसमें नंबर ऑफ नोट्स मिनिमम होंगे? यस, राइट। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू मिनिमम होगा। सो ये 50 कस्टमर्स को, अगर एक कस्टमर को 10 नोट्स दिया तो आई विल रिक्वायर 500 notes of rupees 500 denomination. Okay, there's a one more case कि 50 और कस्टमर ऐसे भी हैं जो 100 रुपए की नोट का प्रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, 100 रुपए की नोट का प्रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में customers who are selecting 100 rupee note as a preference, I need to take care कि x का वैल्यू y plus z से ज्यादा होना चाहिए, x का वैल्यू y plus z से ज्यादा होना चाहिए और x plus y plus z मिनिमम होना चाहिए। इसको मिनिमाइज करने के लिए इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमाइज इस तरह से करना है कि x की वैल्यू y plus z से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या ये केस चलेगा? इस केस में नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें तो x y plus z से ज्यादा नहीं है। ओके, इफ आई टेक इट एज 9, 500 रुपए के 9 नोट्स लिए 4500 5 बचे, तो ये क्या ये चलेगा? इसमें नहीं चल सकता है। x का वैल्यू y प्लस z से ज्यादा करना है। 100 रुपीज प्रेफरेंस सिलेक्ट कर रहे हैं ये 50 कस्टमर, तो इन 50 कस्टमर के केस में x का वैल्यू y प्लस z से ज्यादा होना चाहिए। दिस विल नॉट वर्क। इफ आई टेक z एज 8, अगर z का वैल्यू 8 ले लिया तो फिर 1000 रुपीज हो गए, then I'll have this value as 1, as this value as 10, right? क्या ये केस चलेगा? Then in this case this will be 0 guys, right? You see that x here is more than y plus z, x here is more than y plus z. क्या ये केस चलेगा? Yes, this will work. So ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको z का वैल्यू 8 रखना पड़ेगा, और अगर z ये 8 होगा और ये 10 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इससे नीचे जाने पे भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। 7 ले लिया, 3500, बाकी 15 नोट्स ले लिए, तो ये भी चलेगा। लेकिन इन दोनों में से कौन सा केस लेना है? वो केस लेना पड़ेगा जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड मिनिमम हो। x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे 18 है, टोटल वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 18 हियर, एंड टोटल वैल्यू कमिंग आउट टू बी हियर इज 22। एंड सिमिलरली और भी बहुत सारे केसेस ऐसे बनेंगे जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, बट आपको वो केस लेना है जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड मिनिमम हो। तो वो केस तो 10, 0 और 8 वाला है। तो यू सी दैट 10, 0, 8 के केस में 50 के एक कस्टमर को 50 के 8 नोट जा रहे हैं। 50 कस्टमर्स हैं, एक कस्टमर को 8 नोट जाएगा, तो 500 रुपए के नोट वाले 400 नोट और आपको चाहिए, 400 नोट्स ऑफ रुपीज 500। सो सी दिस टोटल नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स कितने हुए? 500 नोट्स 500 रुपए के उन कस्टमर के लिए जिन्होंने 500 का प्रेफरेंस सेलेक्ट किया, 400 नोट्स उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने 100 का प्रेफरेंस सेलेक्ट किया। तो 500 प्लस 400 टोटल हो गए 900 नोट्स। मतलब एटीएम के अंदर टोटल 900 नोट्स पड़े होने चाहिए। ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, दैट x प्लस वाई प्लस जेड मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए, 50 कस्टमर जो 500 का प्रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, और 50 कस्टमर जो 100 का प्रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो दिस इज द सेट गाइस। सो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेट। सेट वाज क्वाइट इजी, इट वाज कंप्लीटली अ लैंग्वेज बेस्ड सेट। लैंग्वेज को ढंग से पकड़ के समझना था, बाकी सेट में इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए आप सबको। यू शुड हैव बीन able to do this set quite easily. Thank you so much for watching this video guys. Please share it with all of your friends who are preparing for CAT, and if you're planning for CAT 2020 and 2021, and if you wish to attend all of my live session guys, you can join Unacademy Plus using my subscription, using my referral code LRDI Sameer. LRDI Sameer is my referral code that you can use to get admission on Unacademy Plus, and you'll be able to attend all of my live sessions, and as well as you'll get 10% off on discount, 10% off on the Unacademy Plus purchase. Thank you
course, thank you so much for watching this video. See you in the next video, guys. Thank you.